Citizen Health team under Team Academia IAPS and eConnect. And for the discussion today in the series of People's Health, It Matters, today we have Dr. Himashri, who is the Associate Professor in Community and Family Medicine, AIIMS Guwahati. A warm welcome to you, ma'am, on behalf of all the audience. Thank you, Ritu. And today we are going to talk on a very interesting topic and very important topic, that is health in pregnancy. So, should we start the session, ma'am? Yes, please start. We are ready to start. I would like to start the session with my first question, that why is care in pregnancy so important, and why do we give so much stress on the health checkups of the mother during pregnancy? So first of all, I would like to thank you for inviting me to this forum, and let's begin with a very important discussion actually on the antenatal care, because we see that the mothers in India are still dying today because of pregnancy and childbirths, and the care of the mother is very important actually, because there are so many changes when a woman becomes pregnant. There are so many changes in her body during this period, so to accommodate the fetus. So not only changes physically, mentally also, emotionally also, there are so many changes in the mother. So what happens is that we have to support the mother first and foremost. She needs a little amount of extra care at this time. Okay, first, and then secondly, the most important thing is to detect any kind of complications or any risks that she might be having during the pregnancy. So the care of the pregnant woman is very important. And moreover, what we do is that by giving an extra attention or extra care, we also prepare her mentally for her pregnancy. She's very emotionally vulnerable during this period. So this kind of care gives her the confidence. Okay, so she knows a bit more about the pregnancy. We counsel her about the checkups and everything, what she should be doing during the pregnancy, what she should be having, and moreover, we can detect any kind of complications that are happening to her during this period. So that is why, to prevent and to prevent any complications and to have a healthy mother and a healthy baby, we need to take very much extra care for the pregnant woman. How many health checkups are required for a pregnant mother? What are the important tests that are required to be done in pregnancy? Yes. So this is a very common question which is often asked, and many people, especially you see in the remote rural areas, people or the women, they don't know about these basic things regarding antenatal checkup. Kitna checkup karna hai मतलब pregnancy के time पे. So ideally, a woman should do antenatal checkups very frequently. And the ideal one, the perfect situation is she should come for at least 9 महीने का pregnancy होता है ना. So in the first 7 months, she should come ideally once a month to the doctor. In the 8th month, she should come at least twice in a month. She should come twice to the doctor. And from the 8th month, every week, she should come to the doctor till the time of pregnancy, I mean the delivery. But what happens, is it possible? ये तो possible नहीं होता है इतना frequent checkup ना rural area में, जो लोग daily wage earner होते हैं, it is not possible for them to come for checkup. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि मिनिमम 4 चेकअप इज वेरी एसेंशियल. 4 चेकअप, 4 चेकअप करना है. द फर्स्ट चेकअप शुड बी ideally whenever she knows that she is pregnant. जब भी pregnancy के बारे में पता चले, she should immediately go to the nearest health center for her first antenatal checkup. Okay, and the second one, ideally the first one is at 12 weeks or whichever is early, whenever she knows that she is pregnant. The second one is ideally between 14 to 26 weeks is the second. Ideally, she should go for the second checkup. Third checkup between 28 weeks to 34 weeks. And the fourth checkup from 36 weeks to onwards, she should go from the 36 weeks. So these are the minimum 4 checkup, 4 checkup. Antenatal checkup, 4 bar is very, very essential for the pregnant mother. So, and then what we do during this checkup is also very important. So पहले checkup में क्या होगा? पहले checkup में उनको register करवाया जाएगा एक maternal and child health card, MCP कार्ड, मैटरनल एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड जिसको बोलते हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बनाया है. तो ये कार्ड जब वो रजिस्टर करेगी तो इनको एक नंबर दिया जाएगा, तो वो कार्ड वो महिला को दिया जाएगा. उस कार्ड में सब हिस्ट्री लिखा होगा कि ये महिला का आइडेंटिफिकेशन,
डिटेल्स होगा, फिर उनको क्या क्या हिस्ट्री में है, जैसे कि अगले प्रीवियस प्रेगनेंसी में अगर कोई बच्चा हुआ है तो कैसा हुआ है, कोई कॉम्प्लिकेशन था क्या पहले प्रेगनेंसी में, डिलीवरी के टाइम में कुछ प्रॉब्लम हुआ था क्या, ये सब हिस्ट्री एकदम डिटेल्स में होगा। फिर होगा उनको कोई तकलीफ है, उनको एनी हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप का कोई प्रॉब्लम है, या डायबिटीज का कोई प्रॉब्लम है, या टीबी है, या आपको जैसे एस्थमा है, जो भी है एनी काइंड ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, वो एकदम अच्छे से लिखा होगा वो हेल्थ कार्ड में। तो वो हेल्थ कार्ड उसको हर चेकअप में लाना होगा। दैट लेडी विल हैव टू ब्रिंग द हेल्थ कार्ड एट एवरी चेकअप ideally. So the first checkup, she is registered formally into the system, and the ANM also, whoever does the checkup, will have to register and enter all the details in the register. And उसके बाद क्या होगा कि she will have to डिटेल हिस्ट्री लिया जाएगा उनका। वो तो मैंने बता ही दिया कि क्या क्या है, उनको पहले प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम था क्या। फिर उनका डेट ऑफ डिलीवरी भी कैलकुलेट किया जाएगा उनके लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के हिसाब से। तो वो कैलकुलेट करके उनको बताया जाएगा कि आपका डेट ऑफ डिलीवरी ऐसा ऐसा है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो हम बोलते हैं। फिर उसके बाद एक चेकअप किया जाएगा, थरो चेकअप, और वो हर बार किया जाएगा। एवरी प्रेगनेंसी द चेकअप विल बी डन. So in the first checkup, what they will do? In the first checkup, they will take her weight. Weight is very important क्योंकि वो एक baseline data बन जाता है। उससे हम लोग compare करते हैं कि weight बड़ा है, कितना बड़ा है प्रेगनेंसी के टाइम, तो वेट गेन हुआ कि नहीं सफिशिएंट। आइडियली 9 to 11 kgs वेट गेन होना चाहिए प्रेगनेंसी में, उतना हो रहा है कि नहीं। तो पहली बार हम लोग वेट चेक करते हैं, उनका हाइट लेते हैं। फिर ब्लड प्रेशर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर हुआ तो वो एक वार्निंग साइन है कि उनको एक जो बोलते हैं एक्लेम्शिया या प्री एक्लेम्शिया की तरफ वो इशारा करता है, तो इमीडिएटली उनको रेफर किया जाएगा अगर उनका ब्लड प्रेशर हाई हुआ तो। उसके साथ और कुछ क्राइटेरिया है जिसके हिसाब से हम लोग बोलते हैं कि ये प्री एक्लेम्शिया है। फिर उसके बाद आपका ये खून की कमी है कि नहीं वो थोड़ा देखेंगे, आंख वाक का, फिर हाथ का पैलर जो हम बोलते हैं वो देखेंगे। फिर आपका ये ब्लड प्रेशर देखेंगे, फिर हार्ट रेट वगैरह वगैरह। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि इडिमा, पैरों का सूजन होना, वो भी देखते हैं हम लोग। तो अगर प्रेग्नेंट वुमन आके बोलती है प्रेगनेंसी में कि मेरा एकदम अंगूठी बहुत टाइट होता है, मेरा अंगूठी बहुत टाइट हो गया है, थोड़ा सूजन जैसा लग रहा है, तो इसमें हम लोगों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, हम लोगों को उनको रेफर करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी एक साइन है प्री एक्लेम्शिया। और ब्लड प्रेशर नाप के हम लोग देखते हैं कि ब्लड प्रेशर भी हाई है, तो हम लोग यूरिन टेस्ट करेंगे। यूरिन में अगर प्रोटीन है तो वो एक डेंजर साइन है, तो इमीडिएटली हमको रेफर करना पड़ता है। तो ये सारे चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जामिनेशन में हम लोग करते हैं। पैलर, ब्लड प्रेशर, हाइट, वेट, इडिमा, रेस्पिरेटरी रेट, ये सब हम लोग एकदम अच्छी तरह से हर चेकअप में करवाते हैं। और उसके बाद पेट का भी थोड़ा सा एग्जामिन करते हैं कि यूटेरस ठीक तरह से किस लेवल पे है। और जितना जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ता जाता है तो हम लोग और कई चीजें देखते जाते हैं। तो ये सब हम लोग प्रेगनेंसी में हर एंटीनेटल चेकअप में ये सब चीज देखा जाता है। और दूसरा पार्ट में आते हैं जो इन्वेस्टिगेशन, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन या परीक्षा करना चाहिए, जो आपने पूछा था ना, द इन्वेस्टिगेशन। तो ये डिपेंड करेगा वेयर द वुमन इज गोइंग। अगर वो सब सेंटर में जाती है, इफ शी गोज टू द सब सेंटर, तो वहां पे तो इतना फैसिलिटी नहीं होगा, तो बेसिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, जो आसानी से होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करते हैं। ब्लड ग्रुपिंग का फैसिलिटी हो तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ABO एंड RH ग्रुपिंग करते हैं। और यूरिन को देखते हैं। यूरिन में हम लोग दो चीज देखते हैं, एक शुगर है कि नहीं और एक प्रोटीन है कि नहीं। अगर यूरिन में प्रोटीन है तो ऑलरेडी मैंने बताया कि उनको इमीडिएटली रेफर करना चाहिए, और शुगर है तो भी रेफर करना चाहिए क्योंकि डायबिटीज का ये लक्षण है। तो यूरिन फॉर शुगर एंड एल्बुमिन, फिर आपका हीमोग्लोबिन एंड ABO एंड RH ग्रुपिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब सेंटर में। अगर वो PHC में आई है तो हम लोग और थोड़ा एक्स्ट्रा टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग करते हैं हेपेटाइटिस B का वो टेस्ट करवा लेते हैं। फिर सिफिलिस के लिए एक VDRL टेस्ट है जो हम लोग एक्चुअली करते हैं। और अगर एक मलेरिया एंडेमिक रीजन से हो, अगर उस एरिया में मलेरिया हो, तो हम लोग एक आइडियली मलेरिया टेस्ट
जो किट से आसानी से हो जाता है वो भी करवा लेते हैं। और स्टूल एक बार एग्जामिन करने से भी अच्छा है फॉर एनी ओवा पैरासाइट्स, वो करते हैं। बेसिकली यही सारे इन्वेस्टिगेशन हम लोग करते हैं। और HIV टेस्ट अगर PHC में आई हो तो फैसिलिटी है तो वी कैन डू द HIV टेस्टिंग ऑल्सो, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन बेसिक आपका जो बेसिक मिनिमम है वो है आपका ब्लड ग्रुपिंग, फिर आपका यूरिन फॉर शुगर एंड एल्बुमिन, और आपका हीमोग्लोबिन। ये तो एकदम बेसिक टेस्ट है जो करना ही करना चाहिए। उसके ऊपर आप थोड़ा सा डिपेंडिंग ऑन द फैसिलिटी। ओके, ऐसा देखा गया है प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए न्यूट्रिएंट्स के लिए बहुत सबकॉन्शियस होते हैं, ये खाओ वो खाओ, ऐसे खाओ वैसे खाओ, ज़्यादा खाओ कम खाओ। एंड तो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द न्यूट्रिएंट्स फैक्टर्स ऑफ for the woman? Means how can the pregnant woman take care of her nutrition, and does she need to take any extra nutrients during this period? Again, another very important thing and always being asked by many pregnant women, और सब प्रेग्नेंट से होने के टाइम ही सब लोग बोलते हैं ज़्यादा खाओ, लेकिन कोई अच्छे से नहीं बोलता है कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। घी खाओ, ये खाओ, और फिर मोटापा भी हो जाता है, तो इट्स नॉट एक्चुअली आइडियल। तो डेफिनेटली प्रेग्नेंट वुमेन को एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उनका जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है, अगर मैं टेक्निकल टर्म्स ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन डेली उनको 350 एक्स्ट्रा किलो कैलोरीज चाहिए। हम लोगों को जो जितना नॉर्मली चाहिए उससे 350 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा चाहिए उनको डेली। तो आप देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो खाना ही पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा कैलोरी बढ़ने के लिए बच्चे के लिए। तो एक्स्ट्रा कैलोरी वो कैसे खा सकती है? आइदर वो एक एक्स्ट्रा मील ले सकती है, जैसे कि शाम को वो थोड़ा हैवी खा ले, जैसे कि केवल चाय लेती थी या बिस्किट लेती थी, अभी थोड़ा पराठे थोड़ा घी डाल के पराठे खा लिया और सब्जी खा लिया, सो दैट विल कंपेंसेट फॉर हर एक्स्ट्रा कैलोरी। ऐसा नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा अजीब तरीके का खाना बना के खाना है, जो नॉर्मली खाते हैं हम लोग घर में वही खा सकते हैं, बट फ्रीक्वेंसी थोड़ा बढ़ाना है। एक बार में ही ज्यादा खा लिया तो कभी कभी क्या होता है, गैस्ट्राइटिस हो जाता है उनको, मतलब रिफ्लक्स हो जाता है। तो फ्रीक्वेंट मील्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, और थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाना चाहिए, जितना प्रेगनेंसी बढ़ता जाए वो इम्पोर्टेंट है। और कोई लोग बोलते हैं कि पपीता मत खाओ, फिर ये पाइनएप्पल्स वगैरह मत खाओ, ये बहुत सारे फूड फैड्स जो बोलते हैं ना, मिथ्स है कि ये नहीं खाना है, गरम चीजें नहीं खाना है, मटन नहीं खाना है, ऐसा कुछ हम लोगों ने कई बार ऐसे सुना है। तो ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली ये सब तो लोग बोलते हैं मिथ्स है। और कोई लोग बोलते हैं कि ये अगर आप आयरन फॉलिक एसिड खाओ तो बच्चे का रंग चेंज हो जाएगा, वो भी एक है, मैंने सुना है। तो ये सब नहीं है एक्चुअली, आइडियली ऐसा कुछ है नहीं। तो वुमेन कैन टेक फ्रीली, और बस कन्विंस करना है मदर इन लॉ को, और प्रेग्नेंट वुमेन को कन्विंस करते रहना चाहिए कि नहीं, सब कुछ खा सकती है, नॉर्मली खा सकती है। और एक बात, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा होता है प्रेगनेंसी में, तो उसको ना साग सब्जी ज्यादा खाना चाहिए, साग सब्जी ज्यादा खाना चाहिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो बोलते हैं ना, फाइबर डाइट खाना चाहिए। ऊपर से और एक बात है कि एनीमिया बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम रहता है प्रेगनेंसी में। तो जैसे गुड़ खा सकते हैं पराठे के साथ, गुड़ इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ आयरन एक्चुअली, उसके साथ पराठे गुड़ के साथ खा सकते हैं। फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो बोलते हैं वो खा सकते हैं। तो और हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द वुमेन टेक्स आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट। तो क्या करते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर से, जो जैसे कि हम 4th मंथ से 4 महीने से हम लोग लाल रंग के आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट देते हैं। तो वो टैबलेट जरूर सब महिलाओं को एक टैबलेट डेली जरूर खाना चाहिए। और अगर एनीमिया है, जैसे हीमोग्लोबिन कम आ रहा है ब्लड टेस्ट में, तो 2 टैबलेट खाना चाहिए। अदरवाइज कब ठीक ठाक है तो 1 टैबलेट डेली खाना चाहिए, और नहीं है, थोड़ा एनीमिक है, तो उनको 2 टैबलेट खाना चाहिए डेली। और ये कंटिन्यू करना चाहिए टिल द डिलीवरी के 180 डेज तक, वो कंटिन्यू करते रहना चाहिए। तो ये आयरन सप्लीमेंटेशन, आयरन एंड फॉलिक एसिड, उसमें फॉलिक एसिड भी रहता है। तो आयरन तो आपका खून की कमी दूर करता है, और फॉलिक एसिड आपका बच्चे का ग्रोथ में, हेल्दी जो बच्चे का जो अच्छा ग्रोथ है उसमें हेल्प करता है। तो आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वुमन टू टेक थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, एंड शी शुड स्टार्ट एट द 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि खाने के साथ इमीडिएटली चाय नहीं पिए। चाय पीने से क्या होता है,
कि आयरन जो है उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, तो चाय इमीडिएटली चाय ना पिए, या आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट के साथ इमीडिएटली चाय पी लिया मतलब खाने के बाद, तो ये क्या होगा, आयरन का एब्जॉर्प्शन जो मतलब क्या बोलते हैं आपको, एब्जॉर्प्शन में जो बॉडी में जो बॉडी में लेते हैं रहता आयरन, है। हाँ हाँ एग्जैक्टली, वो कम हो जाता है। तो इसीलिए चाय वाय थोड़ा सा देख के खाने के साथ इमीडिएटली नहीं लेना चाहिए। नींबू, साइट्रस फ्रूट्स लेना चाहिए एक्चुअली, जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो ये थोड़ा थोड़ा अच्छे अच्छे नुस्खे अगर एएनएम या हेल्थ वर्कर दे दे कि आप नींबू खाइए, दाल जो ले लिया नींबू निचोड़ के खा लीजिएगा, तो आयरन का एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा, टेस्ट भी मिलेगा उनको। तो ये छोटी छोटी चीजें उन लोगों को समझाना चाहिए, और ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि ये मत खाओ वो मत खाओ। शी कैन टेक एवरीथिंग आइडियली ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी, एंड आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट एंड कैल्शियम टैबलेट ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो Okay, बहुत and इंपॉर्टेंट। due to shortage of time, I would like to ask you the last question: that what other precautions or advice does a pregnant needs to follow in order to have a healthy pregnancy? So I'll just quickly tell you some important things regarding this. So firstly, the pregnant woman hygiene is very important. That we will not, she has to take a daily bath and keep herself clean. Rest is very important. Ideally 8 hours of sleep. आप 8 घंटे रात को सोए और दिन में 2 घंटे रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। ये दिस वी हैव टू टेल हर। हार्ड वर्क, जैसे भारी चीजें नहीं उठाना चाहिए उनको प्रेगनेंसी के दौरान आइडियली। और कोई भी मेडिसिन लो तो बिना डॉक्टर के सलाह के मत लो, क्योंकि एनी मेडिसिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन बी हार्मफुल फॉर हर एज वेल एज हर फीटस। तो अगर आप मेडिसिन लो तो डॉक्टर से पूछ कर ही लेना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और धूम्रपान और स्मोकिंग और अल्कोहल इज वेरी वेरी रिस्की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी बीड़ी वगैरह सब छोड़, मतलब इफ एनीबडी इज टेकिंग, दिस इज वेरी हार्मफुल एक्चुअली। सो ये सब बहुत हार्मफुल होता है। और जो मैंने ऑलरेडी बताया न्यूट्रिशन के बारे में, वही सारा चीज और नुस्खे और ये सब लेके शी कैन गो फॉरवर्ड फॉर अ हेल्दी प्रेगनेंसी। मैम, एज यू हैव टोल्ड अस अबाउट फिजिकल एक्टिविटी, मैंने ये भी सुना है कि पोछा मॉपिंग करो फ्लोर पे तो नॉर्मल डिलीवरी होगा, या फिर डे 1 से ही जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चला एकदम बेड रेस्ट पे चले जाओ। तो व्हाट इज योर ओपिनियन कि कैसा फिजिकली कितना एक्टिव होना चाहिए और कैसे एक्टिव होना चाहिए? एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द सेटिंग ऑल्सो। जैसे कि एक गांव में एक लेडी अगर वो नॉर्मल, एक्चुअली जो नॉर्मल एक्टिविटीज है वो करते रहना चाहिए। जैसे कि आप जाते हो, पोछा पोछा मत लगाओ एक्चुअली, आइडियली इट इज नॉट एडवाइजेबल कि थोड़ा बहुत कर लिया, इट्स ओके। और ऊपर से इट डिपेंड्स, अगर डॉक्टर ने मना किया है कि देखो अगर ब्लड लॉस, थोड़ा सा ब्लीडिंग जैसा हो रहा है, या डॉक्टर ने देखा है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन है, तब तो एकदम ये भारी भरकम चीजें या कोई भी चीज डॉक्टर ने बेड रेस्ट दिया है तो दे शुड फॉलो इट एडवाइस, बेड रेस्ट लेना ही लेना है। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है देन शी कैन कंटिन्यू विद हर नॉर्मल एक्टिविटीज। थोड़ा मोपिंग भी कर लिया, इट्स ओके, बट नॉट एक्सेसिव। एक्सेसिव ऑफ एनीथिंग इज बैड। शी कैन डू हर नॉर्मल एक्टिविटीज, डे टू डे नॉर्मल एक्टिविटीज, दैट्स प्रीटी ओके। Okay, I'm getting greedy more. I would like to ask one more question only. That is, what is birth microplan and why is it important? So birth microplan actually is basically what we do is that the woman she plans regarding her birth, no, जो जैसे ANM में जैसे एक गांव में अगर a woman she plans to give a birth, no, then she has to discuss with the ANM ideally कि where she wants to deliver, go for delivery, who will do her delivery, okay, and what will be the mode of transport for her delivery. So beginning from the pregnancy only, antenatal checkup, how she will go for antenatal checkup, how frequently she should go for the antenatal checkup, ठीक है, and during pregnancy, then during delivery, where she will go, who will conduct her delivery, what will be the mode of transport, everything is planned. That is called a birth microplan. The ANM, the ASHA, preferably the ASHA and the woman, they plan it out together, how the delivery will be conducted, how, I mean, what will be the process, how she will go, okay, what is her preference, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कहाँ पे शी वुड लाइक टू प्रिफर, सब सेंटर में जाती है या PHC, और इफ देयर इज एनी कॉम्प्लिकेशंस वेयर शी वुड लाइक टू गो
in case there are some complications, then where she will be referred to, ये सब पहले से ही अगर तैयार करके रखे, so then what we can do is that she will also gain confidence. Firstly, the mother will gain confidence, and secondly, it will be easy during the process of delivery कि ओ ऐसे complication हुआ तो ये हम लोगों ने decide कर लिया कि ये वाला health center में जाएंगे, एक गाड़ी लेके जाएंगे, वो भी हम लोगों ने बता के रखा है. So this is the entire planning for the pregnancy is the birth micro plan, and this is in Janani Suraksha Yojana has outlined it that every pregnant woman has to, along with the ASHA, has to do a birth micro plan. Okay, so that is about the birth micro plan. Thank you so much, ma'am. It was really interesting talking to you. Thank you so much for talking to us. Thank you for having me.